एक 100% क्लीन, वीगन एंड डिलिशियस टेस्टिंग ब्रांड है जो प्योर केन शुगर से अपने सारे प्रोडक्ट्स बनाता है। हम प्रीमिक्स से लेके इन डेकोरेटिव्स प्रोडक्ट्स लाइक केक स्प्रिंकल्स, फॉन्डेंट एज वेल एज एडिबल लेस जैसे 800 प्रोडक्ट्स बनाते हैं। So I'm going to show you a small demo and show you how we can convert a regular cake into a beautiful cake in just a matter of minutes. So this is just edible glue. Okay, Wow. we're just going to take some of it. My daughter would absolutely love this. Yeah, है ना? this is every kid's dream. This is edible lace. So that's a drip. Yeah. तो ये drip भी edible है. Yes. This is just a simple frosting. ये सब आप बेचती हैं ingredients में? Yes. और ये है हमारे edible sugar flowers, which you just buy and place on a cake. Nice. Gorgeous. Lovely. Nice. Beautiful. India is always known as the land of mithai. And I think it's time for the world to know there is so much more that we can do in food technology. And for that, आपके साथ ये सफर मेरे लिए will be like sprinkles on a cake. क्या बात So है? my ask is 1 crore for 1% equity in my company. ओहो, Wow. धंधा तो solid होगा बॉस। ये तो Crazy. sprinkling नहीं था. This is a baklava style. This is a baklava pistachio cake. We've got a Christmas plum cake and we've got a coconut cake. Thank you. Johnny ji. Delicious. Thank you. Delicious. You know, generally कहते हैं these roses smell lovely, but these roses taste delicious. Thank you. Yum. Would you say कि क्वालिटी वाइज आपका मानना है कि इंडिया में यू आर द नंबर 1 मैन्युफैक्चरर फॉर सच प्रोडक्ट्स? Without a doubt. मैं इंडिया की पहली कंपनी हूँ जो एक ग्लोबल कन्फेक्शनरी ब्रांड बनाने वाली है। We are selling in the United States of America, in London, Wow. UK. We're already in Australia and we're launching in Canada. तो आप एक्सपोर्ट कर रही हैं. कोविड से पहले मेरा बिजनेस B2B लार्जली था एंड लिटिल बिट D2C. कोविड के बाद दो चीजें हुई. एक तो बिजनेस पिवटेड टू ऑनलाइन, बट ऑनलाइन में भी इंडिया में मुझे सैचुरेशन दिखा. इसीलिए मैंने लास्ट ईयर यूएस में एंटर किया और यूएस में वी हैव क्रॉस्ड ओवर $1 million Wow. in 1 year. इनसेन. Yes. आप अपने नंबर्स बता दो. आई थिंक देन ओनली रियल कन्वर्सेशन विल हैपन. Okay, so 2018-19 when we started the business, we were at 24 lakhs, which was all B2B. 2019-20, we were at 1.2 crores. Next year we did 3.4. वो The तो year after COVID था. 5.6, 4.5, and last year we did 8. This year we have already touched 7.5 crores and we're going to close at a 15 crore turnover. तो आपका इंडिया बिजनेस उड़ गया क्या? बिकॉज इतना तो आपका यूएस बिजनेस है. Almost. उड़ा दिया. उड़ा दिया. उड़ा दिया. इंडिया बिजनेस क्यों उड़ा दिया? India is very price sensitive. Right. So we are losing market to जो नए players जो आ रहे हैं. We also were for some time we were at stores, but that client is not ready for this just yet. ना इसकी storage कोई समझता है, ना इसकी handling कोई समझता है. So the cost of doing business, my time and dealing with vendor management was too much. India में fondant sprinkles is not a staple. Whereas in a place like the US, it is a staple. It is much easier for me to penetrate by giving Got them it. something better. In the US, my competition is Wilton. Their valuation is about 3.6 billion. 85-year-old company है. उनके साथ, उनके fondant के साथ मैं compete कर रही हूँ. शार्क्स मुझे सिर्फ 18 महीने हुए हैं यूएस में. मैं पानी टेस्ट कर रही हूँ वहाँ का कैसा है. मुझे इंडिया में 5 साल लग गए Amazon.in पे 1 लाख कस्टमर्स बनाने में. बट यूएस में मैंने 1.5 साल में 70,000 कस्टमर बनाए. एंड माई रिपीट रेट इज वेरी हाई. प्रोडक्ट अप्रूवल बहुत हाई है. मुझे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट चाहिए था. इसी को लेके मैंने यूके में भी सेल्स शुरू करी और हम 2 महीने में 20,000 पाउंड की सेल कर चुके हैं यूके में, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स नहीं मिलते. मेरे ब्रांड का कॉन्सेप्ट बहुत सारे अमेरिकन ब्रांड्स कॉपी करने लगे विद इन द लास्ट 6 months. Actually, Gauri, let's talk about the numbers. Fondant makes up what % of your sales? In India, it is about 60% of my sales. And in US? 15. US में क्या ज्यादा बिकता है? Because Sprinkles. आपका focus वहाँ है.
Sprinkles, Sprinkles makes up what percent in US? 65. And how many SKUs in Sprinkles do you have? Over 300. गो जीरो एक ऐसा ब्रांड है जहां आपको हर टाइप के आइसक्रीम और डेजर्ट्स मिलेंगे विद जीरो शुगर एंड जीरो गिल्ट। अब ब्रेकअप के बाद आइसक्रीम खाएंगे तो सिर्फ दिल टूटेगा, आपका डाइट नहीं। तो शार्क्स, क्या आप ट्राई करना चाहेंगे? आपके पास रखा गया है हमारा टॉप सेलिंग फ्लेवर, जो है बेल्जियन डार्क चॉकलेट। एंड अनुपम, क्योंकि आई थिंक आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, तो आपके लिए हमने एक वीगन ऑप्शन भी दिया है। Thank you, sir. तो आज हमारे पास 8 कैटेगरीज में 30 से भी ज्यादा फ्लेवर्स हैं और हमने इसे बनाया है हमारे प्रोप्राइटरी शुगर रिप्लेसमेंट ब्लेंड से, जिससे ये नॉर्मल आइसक्रीम से कंपेयर में ऑलमोस्ट 50% लेस कैलोरीज है। और शार्क्स, फन फैक्ट, आज ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम क्विक कॉमर्स और 2 साल के अंदर ही गो जीरो बन गया है इंडिया का नंबर 1 गिल्ट फ्री आइसक्रीम ब्रांड। Well done. मजा आया यार। Thank you. It's delicious. थैंक यू सर। सो आज से 30 साल बाद जब आपका पोता या आपकी पोती आपसे ये पूछेंगे कि इतनी कूल कंपनी में आपने इन्वेस्ट क्यों नहीं किया, तो क्या आपको गिल्ट नहीं होगा? आपके इसी गिल्ट से रिहा करने के लिए आज मेरा आस्क है 1 crore फॉर 1% इक्विटी। सो शार्क्स, अब से जीरो इज द रियल हीरो। गुड आइसक्रीम यार, वैसे मैं खाता रहता हूँ आपकी आइसक्रीम। ओह, थैंक यू सो मच। It's really, really good. Yeah, that tastes like उसमें दूध है. Seriously, it's very milky. यस, थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। हाउ डिड यू स्टार्ट? मैं बॉर्न ही हुआ हूँ एक आइसक्रीम फैमिली में। सो सिंस 1971 अप्सरा आइसक्रीम्स करके मेरा एक फैमिली बिजनेस है। Wow. या और 2006 में मैंने अपना इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। उसके बाद 2 साल मैंने विप्रो में काम किया एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। 2009 और 2011 वाला जो बैच था IIM लखनऊ से मैंने मेरा MBA किया। मैंने 2011 में प्रॉक्टर एंड गैम्बल ज्वाइन किया। मैं 3 साल सिंगापुर में रहा। तो 2014 आई केम बैक फ्रॉम सिंगापुर और मैंने अप्सरा आइसक्रीम मेरा फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। 2020 और 21 में ये भी देखा कि हमारा जो फैमिली बिजनेस है वहाँ पर भी जो शुगर फ्री आइसक्रीम्स है उसका सेल अब पिकअप होना शुरू किया है। तो अब जो कंज्यूमर्स है उसको ये पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा चीनी मेरे लिए ठीक नहीं है। सो मैंने ये डिसाइड किया कि अगर एक नया ब्रांड बनाना है तो ऐसा कैटेगरी मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा जो यहाँ से आगे के 5 साल या 10 साल में एक नया कंज्यूमर कोहॉर्ट बन रहा है, जिससे ये बहुत ज़्यादा पिकअप करने लगा। कैन यू टेल अस योर रेवेन्यूज? सो हमने जुलाई 2022 में लॉन्च किया, तो उस साल हमारा नेट रेवेन्यू था 2.5 करोड़। 23-24 में हमारा रेवेन्यू था 11.1 करोड़ और इस फाइनेंशियल ईयर में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 33 करोड़ और crazy. अब तक हम 15.1 करोड़ कर चुके हैं। And loss? वी आर एट अराउंड -15% एबिटा लॉस। क्विक कॉमर्स की थोड़ी यूनिट इकोनॉमिक्स समझते हैं, ये समझने के लिए। तो आप बोल रहे हो अबाउट 24 करोड़, 2 करोड़ पर मंथ आपका क्विक कॉमर्स पे होता है नेट रेवेन्यू। जी। तो मतलब सेल्स अबाउट 3 करोड़। So with GST we sell around 4.5 crores to 5 crores on quick commerce. 4.5 करोड़ का आपका रियलाइजेशन 2 करोड़ होता है। Yeah. क्यों? Because उसमें हम 18% GST निकालते हैं Yeah. और जो 35% जो मार्जिन है वो भी निकालते हैं। Oh, तो ये जो numbers बताया आपने 33 crores. That is post the 35% margin and commission which we give to quick commerce. अच्छा, that is post. Yeah. Yeah. 4.5 करोड़ पे क्विक कॉमर्स पे आप कितना मार्केटिंग स्पेंड करते हैं? So we spend around 45%. और 4.5 करोड़। But that includes marketing as well as the consumer offers. मार्केटिंग कितना है? खाली डिस्काउंट हटा के सिर्फ मार्केटिंग मार्केटिंग, सो जैसे हमने समर में किया था ऑलमोस्ट 30% और अब हमने स्केल डाउन करके अक्टूबर में हम सिर्फ स्पेंड कर रहे हैं 21%। मेरा फर्स्ट राउंड जब मैंने रेस किया वो Jan 23 में एक सीड राउंड रेस किया था। वो मैंने रेस किया था 8.5 करोड़ एट अ प्री मनी ऑफ 25 करोड़। उस टाइम पे जो हमारा एनुअल रन रेट था वो 2.5 करोड़ का था। उसके बाद में Jan 24 में हमने उन्हीं इन्वेस्टर से एक फॉलो अप राउंड रेस किया। कौन investors? So we have 3 consumer VC funds, DSG Consumer, Sama Capital and V3 Ventures. So उन्हीं के साथ एक फॉलो अप राउंड रेस किया था Jan 24 में, which was 12 करोड़ at a pre revenue of 63 करोड़। उस टाइम पे हमारा 12 करोड़ का रेवेन्यू चल रहा था, उस पे 5 का मल्टीपल के हिसाब से 63 का प्री रेवेन्यू आया। लेकिन उससे
नेक्स्ट जो समर सीजन था, हमारा सेल हैज गॉन फ्रॉम अ मंथली रेवेन्यू ऑफ अराउंड 1 to 1.5 करोड़ और आज कंसिस्टेंट बेसिस पे हम 2.5 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक कर रहे हैं। बट किरण, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, आर दे ओके कि आप इतना पैसा खर्च के बाय कर रहे हो सेल्स, या आपको उन्होंने बोला है कि थोड़ा स्टॉप लगाओ? अगर इन्वेस्टर नहीं भी बोलेगा तो एज अ गुज्जू एंटरप्रेन्योर मैं भी फिजूल खर्ची में बिलीव नहीं करता। गुड वर्ल्ड ऐसा ब्रांड है जो कंज्यूमर्स को शुद्ध और हाइजीनिक गुड 5 ग्राम और 10 ग्राम जैसे कन्वीनियंट साइजेस में उपलब्ध कराता है। यानी छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हाँ दीदी, गुड वर्ल्ड के जैगरी प्रोडक्ट्स हल्दी, अदरक, कॉफी जैसे 12 नेचुरली इन्फ्यूज्ड फ्लेवर्स में भी उपलब्ध है। गुड वर्ल्ड के सारे जैगरी प्रोडक्ट्स हमारे खुद के US FDA सर्टिफाइड स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में तैयार किए जाते हैं और ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से हम इन्हें पूरे दुनिया भर में प्रोवाइड करते हैं। हम गुडप्रेन्योर्स अपनी फैमिली की 40 साल की जैगरी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को मिलाकर भारत के इस हम्बल स्वीटनर को एक नई पहचान दे रहे हैं। अप्रैल 2021 से लेकर अब तक हम गुड वर्ल्ड जैगरी के 2 करोड़ से भी अधिक गुड बाइट्स बेच चुके हैं। हमारा विजन है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ लोग गुड वर्ल्ड के गुड बाइट्स का रोजाना सेवन करें। शार्क्स, हमारे इस विजन को रियल करने के लिए हम आपसे चाहते हैं 50 लाख रुपए अगेंस्ट 2% इक्विटी और ढेर सारी मेंटरशिप। तो शार्क्स, हमसे जुड़ जाइए इस वर्ल्ड को गुड वर्ल्ड बनाने में। Right. Oh. शिंदे सिस्टर्स, यस, आप रियल सिस्टर्स हैं, कजिन्स हैं? we're real cousins. फर्स्ट कजिन। First cousins. क्वेश्चन एंड आंसर्स आगे बढ़ाने से पहले इस शुभ कार्य की शुरुआत हम पहले टेस्टिंग से कराना चाहते हैं। शुभ काम आरंभ किया जाए। यस, थैंक यू। दिस इज फॉर यू। जरा गुड़ खाएंगे हम। ये पैकेजिंग देखने के लिए कौन सा अच्छा है? सब अच्छे हैं। वरुण, दिस इज फॉर यू। थैंक यू। अनुपम, दिस इज फॉर यू। सौंफ, गुड़ बाइट्स, कार्डमम, देसी घी, अमेजिंग। I want to try the desi ghee. And what is मसाला जैगरी पाउडर? कभी सुना नहीं। मसाला चाय फ्लेवर है, इज वेरी नाइस। कार्डमम वाला इज मैंने वेरी नाइस। देसी घी का खाया। हाँ, मैंने भी इलायची। देसी घी वाला खाया। घी तो मजा आ गया। हाँ, भाई प्रोडक्ट तो अच्छा है, मानना पड़ेगा। देसी घी का खाया तो देसी घी का स्वाद Thank सही में मुंह में मतलब बस गया। प्रोडक्ट तो आपका गुड है। थैंक यू। लिटरली। वेल डन गर्ल्स। थैंक यू। तो ये आपका आविष्कार इनोवेशन नहीं है, क्योंकि आपने कहा कि 40 साल से एक आपके परिवार की बिजनेस चलता आ रहा है। तो कैन यू एक्सप्लेन हाउ, ये क्या हिस्ट्री है और आपने इसको कंटेम्परराइज कैसे किया? 40 साल से जब करने लग गए ना वो 10 किलो के ब्लॉक्स बनाते थे या 5 किलो का। उसका यूज पर्पस जो है वो एनिमल फीड, लिकर इंडस्ट्री ऐसे होता था, प्लस ह्यूमन कंजम्पशन। कौन से शहर में, कहाँ से दिस हो? इज इन छत्रपति संभाजी नगर, औरंगाबाद जिसे पहले बोला जाता था। अच्छा, आप भी वहीं से कर रहे हो अभी? हाँ, 2014 तक जब वो आए तो उन्होंने वही सोचा कि मल्टीपल लोग यही चीज कर रहे हैं, कमोडिटी बना रहे हैं, अच्छे मार्जिन्स नहीं थे। 2014 में उन्होंने वो शट किया प्लांट, एंड उसके बाद हमारा ये थॉट प्रोसेस था कि हम ऐसी जैगरी बनाएंगे जो इंसान खा सके। तो इतना, जैसे हम बोलते हैं मसालों में अडल्ट्रेशन है, जैगरी में उससे भी ज्यादा अडल्ट्रेशन है। Really? व्हाइट के लिए लाइम डालते हैं, ब्लैक करने के लिए कलर डालते हैं, बहुत सल्फर भी यूज होता है, क्लेंजिंग एजेंट्स यूज होते हैं। एक्चुअली लोग बना ही नहीं पाते हैं बिना केमिकल्स डाले हुए, ये प्रॉब्लम। तो आपने कब ये बनाना स्टार्ट किया? ये प्रोडक्ट्स हमने क्रैक किए दिसंबर 2019 में। ओके। गुड़ की जब बात करें तो बहुत टाइम हो गया, जैसे मेरी दादी खिलाती थी हमारे हाँ, को। गुड़ और चना। उसके बाद हाँ। बहुत साल हो गए, ऐसा नहीं था कि हमें गुड़ की कोई नीड आई हो कि हमें गुड़ ही खाना है टाइप से। वो इसलिए है क्योंकि शुगर रेवोल्यूशन आ गया था और शुगर इतनी कन्वीनियंट है यूज करने के लिए। आपने डब्बे में से निकाल ली, चाय में डाल दी, दूध में डाल दी। जैगरी ब्लॉक्स में है ना, तो आपके पास टाइम नहीं है ना अमन कि आप तोड़ोगे, इसीलिए आप शुगर यूज करते हो। अच्छा, मेरी माँ। हाँ।
मला पिच खूप छान वाटलं. थँक्यू धन्यवाद.